Hello everyone, today we are here to discuss the impact of GST on milling of wheat into flour, which is later distributed through PDS to the public. We are discussing specifically the case in the state of West Bengal, because in the year 2020 towards the end, a massive search was conducted by DGGI Delhi headquarters straight away to all the big millers. भाई सारे मिलर्स के यहाँ पे सर्च हुई थी, एंड ड्यूरिंग सर्च they insisted that GST rate on the milling should be 18% and value of supply should include the cash income as well as non-monetary consideration in the form of gunny bags, bran and refraction. Previous to this search, some of the millers were paying the tax rate of GST at the rate of 5%, and some of the millers even were not paying the tax, assuming that this service is totally exempt under GST. So after the search being conducted, they insisted for 18% and a broader or the larger, bigger amount of value of supply. Since the very beginning, we insisted that GST rate should be 5%. I was personally handling this matter during the search, and I also insisted to the officer that no, GST rate has to be 5% because they are providing services to a registered person. Food and Supply Department District Controller, that person is registered under GST as a tax deductor, and as per the GST law, अगर कोई TDS deduction के हिसाब से भी GST में registered है, तो he will be treated as a registered person, and if this service is provided to a registered person, tax rate GST rate should be 5%. But they didn't listen the interpretation, which was very much clear. They straight away insisted that no, GST rate should be 18%. But later on, government, after the 43rd GST Council meet, government came up with the circular where they clearly said that GST rate should be 5% in case a person is registered as a tax deductor. First of all, we don't know why this circular was required, because things were very clear in the law. Might be government भी अपनी गलती छुपाने के लिए कि इतनी पहले कुछ confusion था, that's why they came up with the circular just to safeguard DGGI की नहीं, उनके पार्ट में भी ये confusion था, law was not clear. But कोई भी layman अगर इस law को read करेगा, law was very clear before the circular also कि GST rate should be ideally 5%. So they insisted 18% and the larger amount of value of supply. Later on, after the circular, they had to switch to the rate of 5%, but अभी भी value of supply वो लोग demand कर रहे थे cash income plus non-monetary consideration. Fine. अब उसके बाद DGGI के matter के बाद recently advance ruling was also pronounced by West Bengal Advance Ruling Authority, in which question was asked whether the GST rate should be 0% or it should be taxable, because as per the notification, if material component in this composite value of supply is less than 25%, then GST will be exempt. But if we look at the calculation, we'll find that material component will be more than 25%. So I personally feel that there is no question of exemption, by GST to लगेगा, and that too at the rate of 5%, because 18% is now totally out of, माने उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है. ठीक है, तो नाउ अब GST रेट 5% है, दिस इज अ वेल सेटल्ड लॉ. नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. भी वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने को क्या लेना है, इसको लेके बात चल रही है. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैश इनकम जो है, डेफिनेटली दैट विल बी देयर. नाउ क्वेश्चन इज अबाउट गनी बैग्स, ब्रान एंड रिफ्रैक्शन. एज पर माई व्यू, डेफिनेटली गनी बैग्स, ब्रान एंड रिफ्रैक्शन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब उस पे भी जीएसटी देना है. बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस किस वैल्यू पे, बिकॉज व्हेन गनी बैग इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट दे हैड रिटन अराउंड ₹43, बट इन एक्चुअल व्हाट हैपेंस व्हेन दे रिसीव द गनी बैग, it is not of the value of ₹43. Sometimes it is worn out because of wear and tear. It is sold for rupees sometimes 10, 5. It can be any amount. And in fact, in many cases, it was found that it was not in a sellable condition. Apart from this, in some of the cases, millers have told that instead of giving the gunny bags, government supplied wheat in the plastic bags. What will happen in that case? भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्होंने लिख दिया कि भाई गनी बैग का भी कंसिडरेशन ₹43 है, बट एक्चुअल में वैसा है नहीं. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि गनी बैग पे क्या जीएसटी लगना चाहिए. अब यहां पे भी दो बातें, एक तो आपको गनी बैग मिल रही है, उसके बाद आप गनी बैग बेच रहे हो, तो डेफिनेटली व्हेन द मिलर इज सेलिंग द गनी बैग्स, उस पे जीएसटी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट व्हेन मिलर इज रिसीविंग गनी बैग्स,
तो what will be the value of supply that has to be concluded, whether we should take it as per the contract, what is written in the contract, or ideally we should take as per the value when they received the gunny bag. So this is a litigated matter, but I personally feel कि valuation should be as per the realizable value. It doesn't matter what is written in the contract. टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में 10 रुपया लिख देते और आज के दिन उसकी वैल्यू 100 रुपीज होती, तो क्या गवर्नमेंट अग्री कर जाती कि नहीं आपको 10 रुपीज पे टैक्स देना है? और अगर ऐसा है तो ब्रांड और रिफ्रैक्शन के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की ही वैल्यू लेनी है तो नथिंग इज रिटन अबाउट ब्रांड एंड रिफ्रैक्शन का वैल्यू. सो यू शुडंट आस्क एनी जीएसटी ऑन ब्रांड एंड रिफ्रैक्शन. बट ऐसा नहीं है, तो गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर द लॉ, भाई नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पे जीएसटी लगना चाहिए. तो डेफिनेटली गनी बैग का भी जो रियलाइजेबल वैल्यू उस पे जीएसटी लगेगा एक बार, और जब हम बेचेंगे तब दोबारा लगेगा. ये कई मिलर को कंफ्यूजन है कि भाई हम 2 बार क्यों जीएसटी दें. डेफिनेटली यू हैव टू पे जीएसटी ट्वाइस इन दिस केस, बिकॉज दिस सिचुएशन इज वेरी मच लाइक you are a registered person, you are buying from unregistered person and selling in the market. भाई अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी खरीद के मार्केट में बेचोगे तो डेफिनेटली डबल टैक्सेशन तो होगा ही. तो सेम चीज यहां पे जब आपको गनी बैग मिल रही है उस पर कोई आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते. जब आपको गनी बैग मिली उस पर आप एज ए नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन आपने आउटपुट टैक्स दिया, दैट इज नॉट ए इनपुट टैक्स. और फिर जब आप उसी गनी बैग को वापस से बेचोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे टैक्स, नो डाउट अबाउट दैट. तो टू कंक्लूड, भाई अभी आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ये सबके माइंड में क्वेश्चन. हर मिलर ये सोच रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ले. भाई एज पर माय ओपिनियन कैश इनकम जो है दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई. ब्रांड और रिफ्रैक्शन की जो रियलाइजेबल वैल्यू है दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई. एंड गनी बैग्स की भी वैल्यू ऑफ सप्लाई डेफिनेटली वी शुड टेक एट रियलाइजेबल वैल्यू. नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा वैल्यू लिखी हुई हो सकती है, बट स्टिल वी शुड टेक द रियलाइजेबल वैल्यू. एंड ठीक है, इसको लेकर लिटिगेशन हो सकता है, दैट वी हैव टू फेस. Fine, but now there is one more challenge. The challenge is that when the search was conducted by DGI collected lots of tax from the millers. भाई undue कोई भी कारण से भाई प्रेशराइज करके कि नहीं आपका तो टैक्सेबल होगा ही होगा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया. अब आप सोच के देखिए, they collected tax assuming the GST rate to be 18%. And final outcome is what? GST rate is 5%. So in a way they collected the tax assuming the rate more than 3 times. Okay. So currently the situation is this कि most of the millers have paid the excess tax. भाई उन्होंने excess tax pay करके रखा है. तो भाई अगर उन्होंने excess tax pay करके रखा है तो definitely they should claim the refund. और प्लीज ध्यान रखिएगा इसका 2 साल का टाइम लिमिट है, कहीं वो नहीं निकल जाए. भाई आपको रिफंड क्लेम करना है. बट इन दिस प्रोसेस वन मोर थिंग हैपेंड, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा पे टैक्स नहीं दिया, ब्रांड पे टैक्स नहीं दिया, रिफ्रैक्शन पे टैक्स नहीं दिया. तो उस पे जब हम लोग पूरा टैक्स निकालेंगे तो क्योंकि ठीक है टैक्स कंपोनेंट आप लोगों ने दे दिया मिलर्स ने, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ड्यू हो रहा है. तो दैट इंटरेस्ट ऑल्सो हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट. एंड दिस इंटरेस्ट इज वेरी हाई, दिस टैक्स इज ऑल्सो वेरी हाई इन केस, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में व्हाट हैपेंड कि टीडीएस प्रोविजंस वेर नॉट एप्लीकेबल इन द इनिशियल ईयर्स. इट स्टार्टेड आई थिंक फ्रॉम 1 सितंबर 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1 अक्टूबर 2018. तो तब तक तो कई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने टीडीएस में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था. तो व्हाट डज इट मीन, सितंबर 2018 तक तो हर मिलर को अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 18% टैक्स देना होगा, गोइंग एज पर द लॉ. हाँ, इस केस में कई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट वॉलंटरली वो लोग पहले टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले लिए थे. तो भाई जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने पहले से टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले लिया, भाई जिस दिन से टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया उसके बाद से जीएसटी रेट 5% है. तो अब अगर हम लोग बात करें 17, 18, 18, 19, उस साल में कई लोगों ने कम टैक्स पे किया था, कई लोगों ने टैक्स ही पे नहीं किया था, तो उस पर इंटरेस्ट ह्यूज आ जा रहा है, बहुत लंबा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट आ रहा है. सो द सिचुएशन करेंटली इज कि वन टैक्स पेयर इज सपोज टू क्लेम अ रिफंड ऑफ से 50 lakhs फ्रॉम द डिपार्टमेंट. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर इज अ सिचुएशन बिकॉज डीजीए ने इतना बड़ा टैक्स अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो हुआ क्या अभी कि ऐसे मिलर्स है जिनका 50 लाख रुपया भी एक्सेस टैक्स पेड का क्लेम आ रहा है. भाई उन्होंने 50 लाख रुपए एक्सेस पे करके रखा है,
बट क्योंकि डीजीजीआई की रेड हुई थी दिसंबर 20 में, तो तब तक का इंटरेस्ट इतना, भाई दिसंबर 20 के बाद हम लोग मान सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्रीज हो गया, लेकिन उसके पहले इतना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। तो उनका मान लो इंटरेस्ट आ रहा है 40 लाख रुपीज, ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। तो 50 लाख हमको डिपार्टमेंट से रिफंड लेना और 40 लाख का इंटरेस्ट देना है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? भाई डेफिनेटली डिपार्टमेंट रिफंड जल्दी से देगा नहीं और इंटरेस्ट इमीडिएट हम लोगों से मांगेगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी अ बिग हार्डशिप टू द मिलर्स। भाई इस चीज को भी अपने को टैकल करना है, मिलर्स हैव टू टैकल दिस। तो डेफिनेटली व्हाट दे शुड डू, दे शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर द रिफंड। आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, जब तक गवर्नमेंट, जब तक डिपार्टमेंट इंटरेस्ट नहीं मांग रहा देन तब तक इट्स ओके, बट व्हेनेवर डिपार्टमेंट आस्क फॉर द इंटरेस्ट, ask for the go for the recovery proceeding, then definitely before that we have to ask for stay. अगर डिपार्टमेंट स्टे नहीं देगा, वी हैव टू मूव टू हाई कोर्ट to demand the stay, because it is not possible. When I am saying 50 lakh and 40 lakh, it can be even 5 crore and 4 crore for some of the millers. कि भी हमको 5 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट से लेना है और मुझे 4 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देना है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि पहले मैं 4 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का दे दूं एंड देन आई आस्क फॉर द रिफंड, दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग को डिपार्टमेंट से और या फिर हाई कोर्ट से हम लोग को स्टे लेना होगा, एंड आई अज्यूम डेफिनेटली यू विल गेट द स्टे, नो डाउट अबाउट दैट। या फिर भाई डिपार्टमेंट ऐसा करे कि टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट को एडजस्ट कर ले, इट इज पॉसिबल, वैट केसेस में ऐसा पहले हुआ है। ओके, तो अब ये चैलेंज है हम लोग को कि अब क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी अब सारी सिचुएशंस एकदम क्लियर है। रिसेंट में एक एडवांस रूलिंग भी आई, वो भी, उससे भी कोई मीनिंगफुल चीजें बाहर नहीं निकल रही, डेफिनेटली दैट विल बी टैक्सेबल, उस एडवांस रूलिंग के हिसाब से भी टैक्सेबल होगा। तो व्हाट करेंटली वी शुड डू, वी शुड इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग ऑल योर कैलकुलेशंस, उसको आप जितना भी एक्सेस टैक्स पेड आपके हिसाब से आ रहा है आप इमीडिएट कैलकुलेशन करके रिफंड लीजिए, या फिर अगर आपका टैक्स पेड शॉर्टफॉल आ रहा है, आई से यू इमीडिएटली पे इट, नहीं तो आपका उस पे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का मीटर चालू है। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, नो वन कैन सेव यू फ्रॉम दैट, फ्रॉम पेइंग द इंटरेस्ट, सो यू हैव टू पे इट। तो इट्स बेटर यू पे इट सूनर, सो दैट आपकी आगे की इंटरेस्ट की लायबिलिटी अननेसेसरी नहीं है। और अगर आपका एक्सेस टैक्स पे किया हुआ है, यू गो फॉर द रिफंड, इमीडिएटली आप रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए, फिर डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उसकी प्रोसेसिंग करेगा, एंड पूरा चांस है कि ये रिफंड आपको लोअर लेवल पे नहीं मिलेगा। यू माइट have to go for higher level, but definitely you deserve the refund and definitely you will get it. So now the things are very clear कि क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, एंड वी कैन स्टिल वेट फॉर द एडवांस रूलिंग या कोई और रूलिंग आ जाए, पता चल जाए एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर सून। इट्स ऑलमोस्ट क्लियर, खाली गनी बैग को लेकर थोड़ा सा आप बोल सकते हैं लिटिगेशन है कि किस वैल्यू पे लेना, वो भी क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस रुपए पे 43 रुपीज पे लेना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उतनी हम लोगों को रियलाइज नहीं हो रही है। ओके, सो प्लीज ऑल द मिलर्स यू शुड डू ऑल योर कैलकुलेशंस। शॉर्टफॉल है पे कीजिए, एक्सेस है रिफंड क्लेम कीजिए, अगर एक्सेस है और साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट भी, आस्क फॉर द सेट ऑफ, और अगर डिमांड करें इंटरेस्ट का तो वी शुड आस्क फॉर द स्टे प्रोसीडिंग्स with the lower level, otherwise at the high court level. Okay, thank you so much.